रहे होते हैं उसमें जी जी मैम। ज्यादा बेहतर चीज ये होती है कि आपने जो कोई रियल टाइम देखे हो सिनेरियो या कोई पेशेंट या कोई ऐसा जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया हो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा तो मैम इसमें वो। ज्यादा बेहतर ये होता है कि ये सिनेरियोज आपकी तरफ से आए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी तो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा बेहतर पता होती है। तो अगर आपकी तरफ से सिनेरियो हो, क्योंकि जो वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि वो सिनेरियो भी प्रेजेंट करेगा और उस पर डिस्कशन भी करेगा। जी मैम, मैम एक सिनेरियो तो है मेरे जी पास। जी बताइए। A 41 years old, Gravida 5 para 4, previous SVDs at 16 weeks of gestation, presented to gynae OPD with a history of जेस्टेशन ड्यूरेशन कितनी है? ma'am 16 weeks. 16 वीक्स। Yes ma'am. ठीक है। हाँ जी। Presented to gynae OPD with a हम्म। history of irregular vaginal bleeding and hyperemesis. Her fundal ओके। height is 22 centimeter. हम्म। ठीक है, हाइपरेमेसिस है, ब्लीडिंग है, और फंडल हाइट इज 32 22 सेंटीमीटर। 22. 22। ओके। Yes ma'am. चले इसमें जरा अब शुरू कीजिए। Yes ma'am. First of all, I will introduce myself to the patient, हम्म। take her introduction. I will confirm हम्म। the scenario from the patient and also ask the biodata including name, age, education, occupation, and her merit since. Then I will हम्म। ask her about the detail of her symptoms, that the हम्म। number of episode of pervaginal bleeding, amount हम्म। of bleeding, color of the bleeding, or any passage of vesicle in the bleeding. Then हम्म। I will ask her about any precipitating factor of the bleeding, like coitus, heavy weightlifting, any trauma, any trauma. हम्म। Then any pain associated with the with the bleeding. हम्म। Then whether it's a plant then I will ask her about the last menstrual period and the regularity of the period to confirm her gestation. हम्म। Then whether the pregnancy was spontaneous or planned or unplanned, हम्म। spontaneous or assisted conception, or by the हम्म। ovulation induction. हम्म। And then how she confirmed her pregnancy, by the urine pregnancy test or by the ultrasound. ओके। Does she took any folic acid in the start of pregnancy? Any हम्म। as she is having complaint of excessive nausea vomiting, so any admission to the hospital for that or any हम्म। treatment for that? हम्म। Any dating scan was done or any dating scan was done or not? What was the report if available? How did she हम्म। confirm her pregnancy? Oh, sorry. Then I will ask her about the gynecological history, regularity of the cycle, and use of contraception, pap smear history. I will take the ops history in detail. What was the mode of deliveries? All mode of deliveries, and any previous history of molar, and एनी व्हाट? previous history of molar. ओके। Then I will ask her about the medical, surgical, and the family history of हम्म। smoking and any drug allergy. हम्म। Then I will go for the examination. On हम्म। examination, I will check her. I will check her height and weight to calculate her BMI, general look of the हम्म। patient, anemia, vitals of the patient, including हम्म। BP, pulse, temperature, respiratory rate, anemia, हम्म। jaundice, and thyroid examination. Uh, ओके। हम्म। then the per on the per then on per abdominal examination, I will check her height of fundus, simply the fundal height. However, her gestational amenorrhea was 16 weeks. हम्म। Yes, so I reconfirm her LMP. हम्म। uh, I will look for any mass, ma'am. Then I will do the per speculum examination, and any if she applied pad, I will check her pad, whether any vesicle or bubbles present or not, any हम्म। bleeding, and हम्म। then ma'am per speculum examination for the
cervical health, हाँ health of the cervix, and then I will do the biomanual examination. I will look for any adnexal mass हाँ and investigate. Then I will go for the investigation. In investigation, ओके, अभी first, अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। yes, ma'am. तो क्वेश्चन मेरा है बाकी ऑडियंस से कि इन्होंने जो हमें हिस्ट्री बताई है उस पे इसमें उन्होंने मतलब ये है कि इसमें जो सिम्टम्स प्रेजेंट किए, सो फार वी डोंट नो कि ये मोलर है भी या नहीं है, बिकॉज इफ द पेशेंट कम्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विदाउट हैविंग एनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट विद हर, तो आपने उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन व्हाट शी हैज मिस्ड सो फार? मैम हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स मिस किए थे मैंने। ठीक है। हाइपरथायराइड, एक तो हाइपरथायराइडिज्म के, और मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेड्स के अभी तो मैं नहीं पूछूंगी ना, जब मुझे कोई प्रीवियस हिस्ट्री बेटा आप होगी थोड़ा तब। सा जरा ऊंचा बोलिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है जी। जी मैम। हाँ जी। मैम मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ हाइपरथायराइडिज्म तो पूछना था, पल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड हीट इंटॉलरेंस, और रेस हाँ बीपी, और ठीक रेस है। बीपी पूछती। हाँ और मैम लेकिन जो हिस्ट्री, हाइपरथायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स आप क्यों पूछना चाह रहे हो, फॉर व्हाट? मैम क्योंकि मैम जो है, अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है, अगर मेरी मतलब सस्पेक्ट कर रही हूँ मोलार, तो उसमें एचसीजी रेज्ड हो जाता है। एचसीजी की वजह से मैम हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आते हैं ना, वो मैम। हाँ सो बेसिकली असल में बात ये है कि ये सपोज अ पेशेंट कम्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ यू विल नो कि ये इसको सिर्फ मोलर ही है, व्हाई नॉट एनी अदर डिफरेंशियल? नो मैम, आपने तो डिफरेंशियल सारी मैम, चीजों को रूल आउट करना होता है। थ्रेटन मिसकैरेज भी हो सकता है, हम्म और ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्विंस हो अगर सकते हैं। फॉर डेट बिकॉज ट्विंस। द अपेरेंट जो आपके दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना इसमें, वो है वेजाइनल ब्लीडिंग और यस मैम, और हाइपरेमेसिस हाइपर एमएससी। एंड फंडल हाइट लार्जर देन द gestation। यस मैम। तो आपने इन तीनों चीजों के ये डिफरेंशियल देखने हैं कि उसमें कॉजेज क्या है। मोलर इज जस्ट वन। ये जिसका भी म्यूट ये जरा अनम्यूट हुआ हुआ है वो जरा म्यूट कर दें प्लीज। तो ये तीन जो सिम्टम्स है यानी जी मैम। हाइपरेमेसिस और इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग एंड द फंडल हाइट लार्जर देन द gestation, ठीक है। यस मैम। ये जी तीन मैम। वो चीजें हैं जिसका डिफरेंशियल आप अपने जहन में सोचोगे। अब इन जी मैम। तीनों चीजों पे एक ही जो डायग्नोसिस जो फिट बैठता है वो मोलर तो है ही है, जी मैम। लेकिन उसमें बाकी अगर हम इसको अलहदा से देखें तो वो यू हैव टू कंसिडर अबाउट द अदर डिफरेंशियल एज वेल इन योर जी हिस्ट्री इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मैम। तो इसमें जी रिकन्फर्मेशन ऑफ द जेस्टेशनल एज इज वन जी थिंग, जी लार्जर फॉर मैम। डेट्स का एक अपना डिफरेंशियल है। हम्म। फिर विजाइनल ब्लीडिंग के कुछ अपने हैं, लोकल कॉजेज हो सकती हैं, प्लेसेंटल कॉजेज हो सकती हैं, एंड द हाइपर एमेसिस जो है वो भी एक उसमें सिम्टम है जिसके आपने और भी वजह पूछनी है। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या पूछी हैं या इसमें कुछ चीजें मिसिंग थी? मेरे सवाल पूछने का मकसद बेसिकली यही है। तो ऑडियंस मुझे जरा बताएं कि इसमें हमें और क्या पूछना चाहिए था। मैडम ट्विन प्रेगनेंसी के लिए पूछना चाहिए ना? जी मैडम ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी कैन बी वन थिंग, मिस्टेकन डेट्स कैन बी अनदर थिंग, और मोलर भी उसका एक डिफरेंशियल मैडम है, इसको या कोई फुल फाइब्रोइड तो ब्लैडर या नहीं है? इस तरह से कोई मैस वगैरह, ये मैस सब चीजें फाइब्रोइड। उसके। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, मैस कोई भी यस ओवेरियन है या फाइब्रोइड। फाइब्रोइड है, वो सारी चीजें उसके डिफरेंशियल में आ जाएंगी। अब इसमें पीवी ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी इटसेल्फ, एक थ्रेटन एबॉर्शन वाली चीज भी हो सकती है। और हाइपर एमेसिस कब से है, इसको शुरू से है समटाइम्स, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है वो शुरू से चल रहा होता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी, हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी कॉज एंड इफेक्ट, दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें, एक कॉज भी हो सकती है और उसका इफेक्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें सिम्टम्स पूछने चाहिए जो इन्होंने पूछे भी। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं ये हमें उसमें जो है वो हिस्ट्री में हमें अल्ट्रासाउंड। लेने चाहिए थे। हाँ जी, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन पे आएंगी ना, लेकिन जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इन्होंने पूछा था कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और ये ट्रीटमेंट भी इन्होंने क्या क्या ली, वो तो इन्होंने पूछा है।
तो बाकी जो है वो ट्रीटमेंट का भी इन्होंने पूछा, लैब टेस्ट का भी पूछ लिए। अब इसमें जो पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है उसमें हमें नहीं पता, मोड ऑफ डिलीवरी तो खैर ठीक है वो पूछ लिया सारा कुछ, कि इसमें व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, व्हेन वाज द लास्ट बॉर्न चाइल्ड बॉर्न, और कोई एंटीनेटल इंट्रानेटल पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन उस वक्त थी या नहीं थी। ये सब चीजें इन्होंने मिस कर दी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में, विच इज इम्पोर्टेंट टू आस्क। और ये बाकी फैमिली हिस्ट्री में भी इन्होंने पूछ लिया, ये ठीक है। और या प्रीवियस कोई ये एबॉर्शन का तो खैर इसमें इन्होंने ग्रेविडा 5 पैरा 4 बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। जी अब एग्जामिनेशन पे डिड शी मिस एनीथिंग? जी मैम। एग्जामिनेशन पे डिड शी मिस एनीथिंग? फीटल पार्ट्स नहीं मैम, देखे, इन्हें- मल्टीपल फीटल पार्ट्स। मैडम मैम, थायराइड हाँ, एग्जामिनेशन स्टेटस थायराइड एग्जामिनेशन किया था इन्होंने। हाँ, GPE एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो किया है, लेकिन क्या हमें फीटल पार्ट्स आसानी से फील हो जाते हैं एट 16 वीक्स? लेस लाइकली मैम। लेस लाइकली, ठीक है। 16 वीक्स पे अमूमन नहीं होते, 22 वीक्स पे हमें हो सकते हैं। सो बाय डेट्स शी इज 16 वीक्स, जो कंफर्म्ड हो गया बाय abdominal examination after the emptying of the bladder, या बाकी ruling out that nexal masses, ये सारा कुछ। If it is truly 22 weeks in size, fundal height जो है, तो उसमें हमें fetal parts feel हो जाने चाहिए। तो ये वाली चीज इसको मेंशन करना जरूरी है। एग्जामिनेशन तो कर लिया, लेकिन इस पे मेंशन करना भी जरूरी है, खास तौर पे उस वक्त जब आपके जहन में एक डायग्नोसिस मोलर वाला चल रहा है। तो चलें जी, अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या कराओगे? Ma'am, an investigation, first baseline investigation, including blood group with Rh factor, complete blood count, including hemoglobin, platelets, and TLC, and fasting blood sugar, midstream urine, and pelvic ultrasound, and also, ma'am, serum beta ICG and the पेल्विक chest. अल्ट्रासाउंड या ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड? Ma'am, चलें ठीक है। transvaginal ultrasound for the अच्छा, viability ठीक है। of the fetus. Any pathology, number of fetus, and any snowstorm appearance, and ma'am, any thecal luteins and any adnexal mass. ओके, ठीक। और Then ma'am, I want further investigation, serum beta ICG and the chest X-ray. और ma'am, my further investigation will depend upon my previous investigations. इन्होंने इन्वेस्टिगेशन पे क्या क्या चीजें मिस की? कीपिंग And इन ma'am, माइंड ऑल थ्री ma'am, सिम्टम्स। thyroid profile, and ma'am, thyroid profile. ठीक है, थायराइड प्रोफाइल। और मैम LFTs RFTs हैं, लेकिन मैम मुझे लगता है कि वो बाद में पूछूं, अगर उनका सीरम बीटा ICG मतलब वो कंफर्म हो गया, या मैम इधर ही पूछ लेनी चाहिए। और क्या पेशेंट को हाइपर एमेसिस है, तो उसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सीरम व्हाट इज द यूरिया रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाइपर एमेसिस? मैम सीरम यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और Ketones in देखो, the अगर urine. तो आप सिर्फ हमने मोलर को ज़हन में नहीं रखना। जी मैम, मोलर के नतीजे में चाहे ये हाइपर एमेसिस हो रही है, लेकिन जी हाइपर एमेसिस जब हो रही होती है तो उसके अपने रिजल्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। जी तो जी इसमें आप LFT और RFT पूछोगे तो वो ठीक है, वो जी जस्टिफाइड एज अ फर्स्ट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में। तो ये इसमें इसके साथ ही आप पूछ लें। और बाकी बीटा ICG। अब ये अगर आपका एक रियल लाइफ पेशेंट है तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स पता होंगे, या मैं बता दूं? मैम आप बताएं। चले, ओके। हीमोग्लोबिन इज 9.5, ठीक जी है। मैम, और बाकी अल्ट्रासाउंड पे देयर इज अ स्मॉल साइज फीटस, जिसका बेसिकली बायोमेट्री इज अकॉर्डिंग टू द 12 वीक्स जेस्टेशन, ठीक है। और उसके साथ द प्लेसेंटा इज शोइंग हाइड्रोपिक चेंजेस, पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज शोइंग हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये ट्विन जेस्टेशन है, जिसमें एक में फीटस है बट दैट इज ऑफ 12 वीक साइज, जो उसकी बायोमेट्री है, एंड द अदर
other sac contains the hydropic placenta as a whole, cystic degeneration of placenta जो है। बीटा ईसीजी बाकी थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ठीक है, एलएफटीज आरएफटी सब ठीक है, हम उसमें चक्कर में नहीं पड़ते। बीटा एसीजी इज 75,000। जी मैम एक जो मैम फीटस है, स्मॉल साइज फीटस, वो मैम वायबल है? क्या मैम आपने बताया ना कि एक स्मॉल साइज फीटस है विद द बायोमेट्री 12 वीक्स एंड प्लेसेंटा शोइंग हाइड्रोपिक चेंजेस, तो मैम वो जो हाँ, फीटस यानी है वो it is twin gestation with यस मैम showing a 12-week size fetus in one sac, and the other sac is showing complete hydropic degeneration of the placenta और cystic, उसमें basically वो है सारी cystic villi। जी मैम वो What is जो it? मैम मैम जो फीटस है वो मैम जो है वायबल है फीटस? Viable fetus है, yes, cardiac activity is positive। Okay, ma'am. Ma'am, then I will counsel the patient regarding the diagnosis that she is having a twin pregnancy with one molar. I will counsel her empathetically that she is having twin pregnancy, but one is molar and one is normal gestation, normal baby. So, I will counsel the risk to the mother, like early fetal loss in 40% and premature birth in 36% and the preeclampsia in 20% of the cases. If she is having she is having one molar and the one viable pregnancy, then ma'am, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है, yes ठीक ma'am, है, क्योंकि सीधा सीधा जो मोलर है उसमें तो ट्रीटमेंट भी आसान है, उसका फॉलो अप भी आसान है, सारा कुछ आसान है, उसमें बहुत एक स्टैंडर्ड चीजें बनी हुई हैं जिसके मुताबिक आप चलते जाते हैं। बट व्हाट टू डू इन सच केसेस? मैम इनमें मैम जितना मुझे याद आ रहा है कि हम कंफर्म करते हैं प्री इन्वेजिव फीटल कैरियोटाइपिंग करते हैं। मैम वो जो वायाबल एक तो मोलर है और जो मैम वन वायाबल है उसमें मैम कंफर्म करते हैं कि वो पार्शियल मोल तो नहीं है। ठीक है मैम, नहीं, उसकी लेकिन क्या आप इसको पार्शियल मोल कहोगे इस जो है इस सिनेरियो को? नहीं मैम, ट्विन प्रेगनेंसी वन मोलर है और वन वायाबल प्रेगनेंसी है ना हाँ, मैम। जो वन वायाबल है तो मैम उसमें भी फीटल कैरियोटाइपिंग करते हैं कि मैम वो जो है हो सकता है मैम वो भी पार्शियल मोल हो। वो कैसे कंफर्म पता कर, चलेगा आपको फीटल कैरियोटाइपिंग से कि ये पार्शियल मोल है? मुझे मैम गाइडलाइन की कोई लाइन याद आ रही है मैम। कैसे पता चलेगा? और क्या आप इसको ऐसे करोगे? सॉरी मैम, उसका इतना ज्यादा पता नहीं। ओके, तो इसको हम अभी, ये चूंकि एक डिफिकल्ट सिनेरियो हमने राइट अवे एट द फर्स्ट वो स्टेप हमने डाल दिया, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसको आखिर में डिस्कस करते हैं। जी मैम। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसमें इट्स अ कंप्लीट मोल, यानी सिर्फ आपको कोई फीटस का पार्ट नजर नहीं आता, बट देयर इज हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ऑफ द विलाई या प्लेसेंटा। There is nothing else except the cystic villi inside the uterus. आप क्या करोगे? With beta ECG levels तकरीबन 45,000, अब इसको हम करते हैं। 45,000। अब तो सिनेरियो आसान हो गया। Yes मैम। Ma'am, I will counsel the patient and attendants regarding the diagnosis that she is having molar pregnancy. This is a high risk pregnancy, and explain the risk if left untreated, like bleeding, uterine perforation, choriocarcinoma, and choriocarcinoma, and the persistent trophoblastic disease. I will then I will explain and discuss them with the management plan, that is the suction and evacuation and the curettage with its pros and cons, and further follow up along with the possible need of post-operative chemotherapy with its pros and cons.
I will Hmm. manage this patient in collaboration with the multidisciplinary team, including senior anesthetist, senior gynecologist, hematologist, histopathologist. Hmm. Ma'am, if she agreed, I will take informed written consent. I will also take the consent for the hysterectomy, multiple transfusion, and need for the long-term follow-up, Hmm. and discuss the fertility prospects with the couple. I will optimize her hemoglobin up to the 11 gram per इसमें deciliter. आप इस ट्रेक्मी की ऑप्शन उसको क्यों दे रही हो? सिर्फ एज अ मतलब रेस्क्यू प्रोसीजर या कि उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस? नहीं मैम, वन ऑफ द रेस्क्यू के अगर कोई हेमरेज ज्यादा हो गया तो हमें एंड अप करना पड़ सकता है. So as a rescue procedure, यस मैम, not एज अ as रेस्क्यू. one of the options of treatment. नो 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 मैम, इस Okay, रेस्क्यू प्रोसीजर. ठीक है. Then I will arrange 2 units of blood for the surgery and put her on the list for the Patient section. hemoglobin is 9.5. You will just arrange 2 units of blood. No, ma'am, I will optimize her hemoglobin level with the PEG cell volume up to the 11 gram per deciliter. And will take. 9.5 पे हम नहीं कर सकते क्या? मैम कर सकते हैं, फिर मैम ब्लड 4 अरेंज करवाएंगे मैम, 4 यूनिट्स. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? It's not necessary that you agree with नहीं me. मैम, कर तो लेते ठीक हैं है? हम तो वार्ड में आप करते अपने हैं. हिसाब से बताएं कि इसमें हमें करना चाहिए ऑप्टिमाइज या नहीं करना चाहिए? मैम 9.5 में मैम अगर ना भी करें तो मैम सिर्फ अरेंज करवा ले तो मैम सही रहे. बाकी सबका क्या ख्याल है? 9.5 पे हमें इसको ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए या नहीं? पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, because ब्लीडिंग risk पे. of bleeding, there is risk of पेशेंट bleeding. कंटिन्यूस ब्लीड कर रही है, पेशेंट की कंप्लीट मोल है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एवैक्यूएशन शी कैन ब्लीड हैवीली. यस ठीक मैम. है, ये वो एंटीसिपेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें पता है. पेशेंट इज ग्रैंड मल्टीपैरा 41 इयर्स की एज पे, जिसपे उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके अलावा बाकी जो उसकी चीजें चल रही हैं. बट अगर पेशेंट जो ऑलरेडी ऑनगोइंग जिसकी ब्लीडिंग चल रही है उसकी हीमोग्लोबिन अब इतनी है और इसमें ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि ये ब्लीड मजीद करेगी. जैसे हम प्लेसेंटा प्रीविया में हम 9.5 पे प्लेसेंटा प्रीविया पे सेक्शन नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि उसने ब्लीड करना है, तो हम उसमें ब्लड भी अरेंज करते हैं और उसकी हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज भी करते हैं. तो इस केस में हम ऐसे ही करेंगे. अगर नॉर्मल सिजेरियन हो, कोई नॉर्मल डिलीवरी है, उस पर करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल सिजेरियन है या सिंपल कोई ऐसा प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन है तो उस पर जरूरत नहीं है. आप सिर्फ अरेंज करते हो ब्लड, जरूरत पड़े तो लगा दो, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं लगाओ. 9.5 को इतनी भी नहीं है, बट यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशंस ऑन गोइंग एज वेल एज जो अपकमिंग है. ये दोनों तरीकों से आपने इसको उसको उसके हिसाब से आपने इसको डिसाइड करनी है मैनेजमेंट. सो you will transfuse 1 PET cells and you will arrange for other blood units. मतलब उसमें आप उसको for procedure आप उसको स्टैंड बाय रखोगे. ठीक है, अब आपने और क्या करना है, आगे चलें. मैम then मैम cervical ripening can be done if needed, just prior to With the what? With what? मैम prostaglandin 200 microgram prostaglandin even. ठीक है, Just कर prior सकते to. हैं अगर बिशप. वैसे तो ये है कि ये पैराग्रेविडा 5 पैरा 4 है, तो हो जी सकता है मैम. इतना पुअर बिशप मैम ना if हो, लेकिन needed, अगर मैम जैसे अगर टाइटली क्लोज्ड सर्वेक्स है, क्योंकि हमें बड़ा कैनुला डालना पड़ेगा, हम Yes, उसमें ma'am. छोटे वो वाली डीएनसी वाली बात नहीं है. जाहिर है उसमें हमें ज्यादा, तो उसमें जो सर्वाइकल राइपनिंग है वो हमें चाहिए होगी अगर जरूरत हो तो उसमें वो कर सकते हैं. Yes, ma'am. Under बट बिफोर द general, प्रोसीजर, उससे बहुत कई घंटे पहले नहीं. नहीं, just prior to the procedure. हाँ जी, जस्ट प्रायर टू द प्रोसीजर. Yes, ठीक है. ma'am. Under general anesthesia, I will put the patient on lithotomy position according to WHO safe surgical checklist. Take all aseptic measure. I will empty her bladder, do bimanual examination to assess the pre-evacuation size of the uterus. And I will then retract the posterior vaginal wall and with the Sims speculum, hold the anterior lip of the cervix with the sponge holding forceps. I will then dilate the cervix with the Haggard's dilator if needed. Then pass the suction cannula
suction cannula just above the cervix, lower part of the or the lower part of the uterus. I will not go upward किस साइज because का कैनुला डालोगे, किस साइज का ma'am कैनुला 12 to 14 mm. Recommended size suction cannula की मैम है 12 to 14 mm. हाँ ठीक है, I कम से will कम 10 से 12 वाला तो जरूर डालो। ठीक है, जी मैम. ठीक है, चलो I फिर। I will not go upward because it will cause perforation. And ma'am, ideally it should be performed under ultrasound guidance, which is the preferred method. Then after the completion, I will remove the instrument, do bimanual examination to assess the post evacuation uterine size in the operative notes. I will send a specimen for the histopathology, and post operatively keep NPO till bowel sounds audible, do vigilant for the PPH, discharge after 24 hours, repeat serum beta ICG after 48 hours. हाँ ठीक है, And यानी then आपने evacuation कर ली, evacuation के बाद आप क्या करोगे? मैम यहाँ पे evacuation देखो यूट्रस रिलैक्स भी तो कर सकती है, तो आप उसमें कोई प्रोफाइलैक्सिस दोगे, कोई यूट्रोटॉनिक एजेंट्स वगैरह? मैम ऑक्सीटोसिन का है कि अगर वो हेमरेज का रिस्क है, अगर वो ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो मैम ऑक्सीटोसिन को मैम वो रखेंगे, कंसीडर करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी मैम उनको दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन, ताकि उनको क्योंकि उनको पीपीएच का रिस्क होता है, तो मैम ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन द उनको प्रोसीजर ओनली इफ नीडेड। ओनली इफ नीडेड. ठीक है, यस मैम. उसका हिस्सा नहीं है ये, यस लेकिन मैम. ये है कि मैम ओनली इफ नीडेड, ओनली ऑन क्लिनिकल इंडिकेशंस, अगर मैम जो ब्लीड न्यू ज्यादा कर रही हो तो। मैम जो न्यू गाइडलाइन है ना उसकी फीगो की, उसमें मैम लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन may be given at the onset of suction and curettage for contractility and can be given for the several hour post operatively. यस, ये वो तो हमने देनी ही होती है, उसमें जी कोई मैम. एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन जी मैम. इंट्रा ऑपरेटिवली अगर If नीडेड needed. हो तो उसमें जी मसला मैम. ये होता है कि कोई भी जो ऑक्सीटोसिक एजेंट्स आप देते हो, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन से राइपनिंग की, तो उसका वो बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करता, हाँ, लेकिन एम्बोलाइजेशन जब का चांस है. जब यूट्रस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे तो बेसिकली उसमें टिश्यू एम्बोलाइजेशन का जी रिस्क जी होता है। जी तो मैम. इस वजह से अगर प्रोसीजर के दौरान में जरूरत हो, पेशेंट ज्यादा ब्लीड कर रहा है या यूट्रस रिलैक्स है, तो उस सूरत में आप दे सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली देना जरूरी है। तो इसमें जी कुछ मैम. चीजें हैं जो हम सर्जरी से, इवैक्यूएशन से पहले हम बिल्कुल शुरू नहीं करते, सो वो उसमें फॉरबिडन, ड्यूरिंग प्रोसीजर अलाउड, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर मैंडेटरी। ठीक है, जी मैम. तो जी मैम. ये जो है ना, ये 3 चीजें वो फिर हमें क्लिनिकली कोरिलेट करके डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, फिर फिर मैम आई विल काउंसिल फॉर द फॉलो अप, स्ट्रिक्ट फॉलो अप every 1 to 2 week till it becomes normal, beta ICG becomes normal. अब एक बीटा ईसीजी हमने करवाया 48 था, hours के बाद, जो 48 हमने hours. प्री ऑपरेटिवली करवाया, यस मैम, बेस्ट लाइन बीटा ICG वो था. फिर हमने करवाया 48 आवर्स के बाद। जी मैम. ठीक है, 48 आवर्स वाला हमारी बेस लाइन बनाएगा, जी प्री मैम. ऑपरेटिवली वाला बेस लाइन नहीं बनाएगा, 48 आवर्स वाला हमारी बेस लाइन बनाएगा। अच्छा. और उसके बाद हमने बाकियों को जो देखना है वो उसके हिसाब से, इस बेस लाइन के हिसाब से हमने कंपैरिजन करना है। ठीक जी है, मैम. उसके बाद हम कैसे करेंगे? उसके बाद मैम 2 वीकली करेंगे till 8 weeks, 56 days. If it becomes normal within 8 weeks, then follow up for the up to follow up 6 months from the day of suction and curettage. If ठीक है, not normal within 8 weeks, फिर when normal till 6 months from that day, नॉर्मलाइजेशन डे के से लेकर फिर मैम टिल 6 मंथ तक. ठीक है। जी इसमें मैम. बेसिकली थोड़ा सा उसमें कुछ गाइडलाइंस में जरा फर्क पाया जाता है कि इसमें फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, वीकली जी भी मैम. कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन के बेस लाइन लेवल्स कितने हैं। ठीक है, जी तो मैम. उसके हिसाब जी. से भी हम, या उसमें पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है ना, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर कन्वर्शन इनटू द कोरियोकार्सिनोमा, तो वहां पे जो है उसके हिसाब से हम इसको 1 वीकली भी कर सकते हैं, 2 वीकली भी कर सकते हैं।
लेकिन बाकी जो चीज है उसके हिसाब से कि हमने इसको 8 वीक्स तक हमने अगर नॉर्मलाइज हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम इसका फॉलो अप जरा लंबा चलाएंगे, यानी उस नॉर्मलाइजेशन के लेवल के बाद से 6 महीने तक, जी मैम। अदरवाइज इवैक्यूएशन के टाइम से लेके 6 महीने तक, तो वो फिर फॉलो अप जरा लंबा हो जाएगा। अब सपोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेशेंट कंप्लेन ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग अगेन। अब ये विजाइनल ब्लीडिंग जो है वो तकरीबन उसकी समझो कि 6-7 हफ्ते पे जो है पोस्ट इवैक्यूएशन 6-7 हफ्ते पे स्टार्ट हो गई। और व्हेन यू हैव परफॉर्म्ड अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड पे आपको एक पॉलीपॉइडल मैस नजर आया ऑन अल्ट्रासाउंड इन द यूट्राइन कैविटी, which is basically invading into the myometrium as well. बीटा ECG at that time जो है वो तकरीबन समझे आप के 15,000। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैम ये इन्वेडिंग टू द मायोमेट्रियम मैम, इट कैन बी द इन्वेसिव मोल जो है मैम, और कोरियोकार्स रेजिडुअल मोल भी हो सकता है मैम, कोरियोकार्सिनोमा। तो क्या करेंगे? मैम फिगो स्कोरिंग करेंगे इसकी। अच्छा, फिर मैम जो फिगो है स्कोरिंग, अच्छा ठीक है, चलो बोलो जरा। जस्ट मैम, मैम फिर मैम इसकी करूँ फिगो स्कोरिंग इस पे? मैम इसकी एज है इसकी मैम 41 ईयर, तो स्कोर 1 होगा। और इसकी जो बीटा ECG मैम 15,000। तो ये जो है प्री ट्रीटमेंट इसकी बीटा ECG की मैम 48 आवर्स के बाद बीटा ECG कितनी थी इसकी? 48 आवर्स के बाद समझे कि 25। और ये हम 6-7 हफ्ते की बात कर रहे हैं। जी मैम। तो मैम अभी के फिगो में तो अभी का बीटा ECG एंटर करेंगे ना? प्री ट्रीटमेंट मैम, मैम इसमें जी। प्री ट्रीटमेंट सीरम बीटा ECG लेवल करते हैं मैम, प्री ट्रीटमेंट करते हैं ना इसमें मैम? किसमें? मैम जो फिगो स्कोरिंग अभी करेंगे तो हाँ उसमें जी। मैम ये 15,000 वाला ये 25,000 वाला करेंगे। हाँ, बेसिकली इसमें हम इनिशियल वाला लेके चलते हैं जो हमारी फिगो स्कोरिंग होती है। जी मैम। ठीक है, चलें जी आगे चलें। मैम इनिशियल मींस जो 48 आवर्स पे बेसलाइन आप कह रही हैं वो बेस वाला? लाइन थी हमारी, जो बेस लाइन थी हमारी। ओके। मैडम इसमें अगर ये इन्वेसिव क्योंकि मोल ये है तो देखो हम ये बेसिकली जो फिगो में वैसे तो हमारी चलती है प्री ट्रीटमेंट, यानी जिसमें हमने अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं की, लेकिन जो बेसलाइन हमारा बनता है ना वो इवैक्यूएशन के बाद बनता है। अब उसमें जो फिगो स्कोरिंग है ना वो है बेसिकली कोरियोकार्सिनोमा के लिए, कोरियोकार्सिनोमा के, क्योंकि उसमें हमने कीमोथेरेपी देनी होती है। जी मैम, मैं यही बात पूछने वाली थी, हाँ ये जी, कोरियो नहीं है क्योंकि मैडम, ये अभी तो हमने इसमें हम डिसाइड फिगो क्यों नहीं कर रहे किया कि हैं? ये कोरियो है, इन्वेजिव है या मोलर है या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो अभी इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हमने सैंपल भेजा। ठीक है, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ना हमें बताया गया कि ये इसका हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या था। द फर्स्ट डायग्नोसिस, क्योंकि जब तक एज लॉन्ग एज इट इज इन टू द मतलब जो है उसमें जो यूट्रस में अभी हमने वैक्यूएट नहीं किया, इट कैन बी अ सिंपल मोल, इट कैन बी कोरियो। अमूमन सिंपल मोल में जो है वो इस तरह की सिचुएशन हमें जो है वो वेजिकुलर वो सारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कोरियोकार्सिनोमा में बाज दफा शीट्स एंड शीट्स ऑफ सेल, समटाइम्स कोरियोनिक विलाय में और में नॉट बी प्रेजेंट, यूजुअली भी एब्सेंट होते हैं कोरियोनिक विलाय, तो शीट्स एंड शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं, जबकि मोलर प्रेगनेंसी में टिपिकल मोलर वेजिकल्स होते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड की अपीयरेंस थी दैट वाज कंसिस्टेंट विद अ सिंपल मोलर प्रेगनेंसी, और बीटा ECG भी इसके बहुत उस हिसाब से हाई नहीं थे, 45,000 थे सिर्फ। तो अगर हम इसमें आउट ऑफ इट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोबेबली मोलर प्रेगनेंसी ही है, सो इसलिए हमें इसमें मजीद देने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो बेस लाइन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्री ट्रीटमेंट। इवैक्यूएशन तो हमने कर ली,
उसके बाद हमने उसका डायग्नोसिस भी सेटल कर लिया, हमें पता चल गया ये मोलर है या कोरियो है। कोरियो में तो हमने ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है, सो फीगो स्कोरिंग वहां पे आ जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द फीगो स्कोरिंग। लो रिस्क है या हाई रिस्क है, या बाज दफा अल्ट्रा सेंस जो है वो उसमें हाई रिस्क भी आ जाते हैं, जिनका फीगो स्कोर 13 से भी ज्यादा होता है। तो इसमें अभी हमने फीगो स्कोरिंग नहीं की, क्योंकि इसमें हमने ये एंटिसिपेट किया कि ये सिंपल मोलर प्रेगनेंसी है। बट नाउ एज द सिचुएशन हैज चेंज एंड उसमें जो है वो इंटरवीनिंग एक प्रॉब्लम आ गया, तो प्री ट्रीटमेंट विल बी कंसीडर्ड। जो पोस्ट इवैक्यूएशन हमारा बीटा ईसीजी था, और वो था हमारा 25,000 और अब जी है मैम। 15,000। इज इट क्लियर नाउ? जी मैम। ठीक है। इसमें इसमें 25 देखो, इसमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि फीगो स्कोरिंग मोलर के लिए नहीं है, वो है कोरियो कार्सिनोमा के लिए। यस मैम, कोरो के लिए और वो फीगो स्कोरिंग इसलिए फिर की जाती है कि हमने उसके हिसाब से रिस्क डिसाइड करना असेस है कि हमने करना। कीमो कौन सी देनी है। जी मैम। ठीक है, तो तब हम उसको फीगो स्कोरिंग शुरू से ही कर लेते हैं, अगर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे आ जाए कि ये कोरियो कार्सिनोमा है। जो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हमने उसका डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम इसको मोलर प्रेगनेंसी के हिसाब से ही लेके चलेंगे। जी, जी मैम। तो क्या बना इसका फीगो स्कोरिंग अब? मैम इसकी मैम जो बिकॉज है, नाउ द सिचुएशन हैज चेंज। यस मैम। मैम इसका वैसे तो बिकॉज 5 अब बना। देखो, जो मोलर प्रेगनेंसी हमने बिल्कुल फर्स्ट पे किया था, अब उसकी एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई। जी मैम। सिंपल मोलर, क्योंकि हमने पोस्ट इवैक्यूएशन जो उसका अल्ट्रासाउंड किया था उसमें यूट्रस एम्प्टी थी, बट नाउ देयर इज अ मैस। और उसमें अगर आप ये देखें 25,000 से 15,000 है आफ्टर 6 to 7 वीक्स, जो जी कि मैम। उसका डिक्लाइन प्रॉपर नहीं है। जी ठीक है, मैम। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? हम्म मैम इस पे मैम फीगो स्कोरिंग के हिसाब से तो मैम ये इंटरवल मंथ्स फ्रॉम प्रेगनेंसी मैम लास्ट बेबी बॉर्न पता नहीं। क्या फीगो स्कोरिंग से पहले हमें कुछ और करना चाहिए इसमें? मैम हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट वो करेंगे, और मैम उसको देखेंगे ब्लीडिंग कितनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। तो मैम फिलहाल अगर उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है तो मैम उसको पैकिंग कर सकते हैं उसकी उसकी What can be the possibility? Just let me know what can be the possibilities. मैम मैम इन्वेजिव मोल हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट और मोल के बाद। और और मैम कोरियोकार्सिनोमा भी हो सकता है इनमें। लेकिन मैम फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर जो है ये मैम जैसे इन्वेट तो मायोमेट्री में तो मोस्ट प्रोबेबली तो इन्वेजिव मोल है मैम उस जो और है। और persistent trophoblastic क्योंकि disease देखो फर्स्ट। जो इन्वेजिव मॉल है, इन्वेजिव मॉल के साथ साथ जो जी मैम। बाकी जो लोकल ट्यूमर्स होते हैं उनमें प्लेसेंटल साइट ट्यूमर्स साइड भी होते हैं। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, यस मैम, ठीक है, प्लेसेंटल जो प्लेसेंटल एटिपिकल साइट नोडुल। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं वो भी हो सकते हैं। जी उसमें मैम। इन सारों में जो अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है वो तकरीबन यही होती है कि उसमें जी मैम। एक मैस की तरह से, पॉलीपॉइडल मैस की तरह से हमें नजर आएगा। तो जी मैम। इसके साथ एपिथेलियोइड जो एपिथेलियल। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स है वो भी हो सकते हैं। अब हर एक का प्रोग्नोसिस फर्क है, हर एक की ट्रीटमेंट फर्क है। सो जी मैम। फर्स्ट यू हैव टू असर्टेन द डायग्नोसिस। जी और ये चूंकि ये इन्वेजिव मोल से लेके ये सारे जो हैं ये सारे मिलिग्नेंसी में आते हैं, तो मिलिग्नेंसी के लिए फीगो स्कोरिंग है लेकिन इससे पहले डायग्नोसिस तो बनाओ। जी तो मैम। इसमें हमें बेसिकली टिश्यू सैंपलिंग अब दोबारा करनी पड़ेगी, रीएवैक्यूएशन, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ अब इन्वेजिव मोल का डायग्नोसिस सिर्फ उस मैस की सूरत में शायद ना हो, क्योंकि जो प्लेसेंटल साइट ट्यूमर है उसमें तो मायोमीट्रियम ना भी हो तो डायग्नोसिस उसका बन जाएगा। लेकिन जो इन्वेजिव मोल है उसमें मायोमीट्रियल सेल्स का होना जरूरी है टू मेक इट्स डायग्नोसिस। तो अब अगर हमें पता चल जाता है कि ये प्लेसेंटल साइट ट्यूमर है, उसमें मायोमीट्रियम कुछ नहीं है सर, हम मैस ही निकाला है, हमने उसकी मायोमीट्रियम को तो नहीं कुछ क्यूरेट किया, तो जी मैम। प्लेसेंटल साइट ट्यूमर आ जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी?
मैम अब तो स्ट्रेट मैम एक फॉरवर्ड में क्वेश्चन है मेरा। हिस्टेरेक्टमी होगी। हम्म मैम आई विल काउंसिल फॉर द हिस्टेरेक्टमी मैनेजमेंट। मैम प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर की तो मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टेरेक्टमी होगी, बट हम्म विद काउंसलिंग मैम उसको पेशेंट को काउंसिल करेंगे हम्म अबाउट द हिस्टेरेक्टमी। हम्म और मैम और मेरा मैम वैसे भी क्वेश्चन है। इसकी फर्टिलिटी भी मैम वो है मतलब वैसे फर्टिलिटी में का इशू ना भी होता तो मैम इसकी तो मैं डेफिनेट ट्रीटमेंट इज हिस्टेरेक्टमी। क्यों सो हम मैस को निकाल दें और बाकी फिर उसको कीमोथेरेपी दे दें तो काम नहीं चल जाएगा? नहीं मैम इसकी तो मैम हिस्टेरेक्टमी है। क्यों? कीमो रेजिस्टेंट होते हैं मैम। यस कीमो मैम कीमो रेजिस्टेंट होते रेजिस्टेंस हैं, होते हैं। यस मैम सो कीमो लीस्ट कीमो सेंसिटिव। ठीक है, यस मैम हम कीमो अगर देंगे भी तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। जी मैम लेकिन इसके साथ साथ अब चूंकि कॉम्प्लिकेशन जाहिर है कि वन ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है, एक सिंपल मोल था confirmed on histopathology and according to the clinical biodata, and then post evacuation she developed this complication at 6 to 7 weeks of follow up। तो उसमें प्लेसेंटल साइट ट्यूमर निकल आया, दैट इज वन ऑफ द मेलिग्नेंट वेरिएंट्स। कोरियोकार्सिनोमा ही तो नहीं, बाकी भी होते हैं। तो इसमें इसके मेटास्टेसिस, इट कैन मेटास्टेसाइज, इन्वेजिव मोल मेटास्टेसाइज अमूमन नहीं करता, जी उसमें मैम मेटास्टेसिस नहीं होते। लेकिन कोरम ये जो प्लेसेंटल साइट ट्यूमर है ये मेटास्टेसाइज कर सकता है, और इसमें अमूमन इसका लिम्फेटिक्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो हमें इसमें इसके मेटास्टेसिस को भी हमने देखना है बाय इमेजिंग स्टडीज, बाय द टारगेट ऑर्गन फंक्शंस, और उसके हिसाब से फिर हम इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये उसकी ट्रीटमेंट होगी। अब ये जो फॉलोअप वाला टाइम पीरियड है, इसमें बेसिकली जब आप एक केस डिस्कस कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, चाहे वो स्टार्ट हुआ एक सिंपल सिनेरियो के साथ, जैसे हमने इसमें डिस्कस किया कि ये एक मोलर प्रेगनेंसी थी जिसमें हमने सिंपल तरीके से एज पर रूटीन हमने उसकी एवैक्यूएशन कर दी, बट लेटर ऑन शी डेवलप्ड अ कॉम्प्लिकेशन, और वो कॉम्प्लिकेशन जो कि कीमो सेंसिटिव नहीं है, तो वहां पे जो है वो फिर आगे जाके चीजें चल सकती हैं। अब इसमें बाल दफा जो होता है वो इतना मैस इतना ऑब्वियस नहीं होता, इवन इन केसेस ऑफ इन्वेजिव मोल भी। तो इन्वेजिव मोल अगर ये निकलता तो फिर हम इसमें क्या करते, क्या फिर भी यही ट्रीटमेंट होती? इन्वेसिव मोल यस मैम सपोज अगर फर्टिलिटी कंसर्न होता तो फिर हम क्या करते? मैम मायोमेटल रिसेक्शन कर सकते हैं इसमें, ये मुझे उसमें नहीं पता। सेगमेंटल रिसेक्शन भी हो सेगमेंटल सकती है, और रिसेक्शन वो यस मैम उसमें वो हम मैं कर सकती कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। इनिशियली तो हम कीमोथेरेपी ही दे के देख सकते हैं, लेकिन उसमें सेगमेंटल रिसेक्शन भी हो सकती है, यानी उतना हिस्सा निकालो और बाकी को रीस्टिच कर दो। हूँ। ठीक है, तो उसमें ये वाली जी ऑप्शन हमारे पास होती हैं, लेकिन प्लेसेंटल साइट ट्यूमर में हमारे हाथ बन जाते हैं, मैम क्योंकि पीएसटीटी में आपने पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी क्यों देनी होती? उसमें अगर मेटास्टेसिस हो तो, क्योंकि ये मेटास्टाइज कर सकता है, इन्वेजिव मोल अमूमन नहीं करता। तो इस वजह से हम इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं वर्क अप फॉर मेटास्टेसिस के करवाने के बाद, यानी सारी मैम हम वो तो इमेजिंग कीमो स्टडीज रेजिस्टेंट करवाएंगे। नहीं है मैम, नहीं, पीएसटीटी लेकिन जो कीमो। उसके मेटास्टेसिस हैं वो उसके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। लोकली इन्वेजन जो उसकी होती है दैट इज कीमो रेजिस्टेंट, लेकिन जो मेटास्टेसाइज कर जाता है, और इसमें सिर्फ एक की कीमोथेरेपी की ही ऑप्शन नहीं होती, बाज दफा अगर ये ब्रेन तक भी हो जाए हम रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, और अब तो इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आ गया हुआ है। इम्यूनोथेरेपी इज वन ऑफ द टारगेटेड थेरेपी जो सिर्फ मेलिग्नेंट सेल्स को मैनेज करेगी, जो हम बार बार डिस्कस करते भी रहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है, जिसमें बेसिकली जो एक सर्वेलेंस थेरेपीज होती हैं वो हैं, जिसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। सीडी के इनहिबिटर्स हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, और इसको हम जितना जल्दी डायग्नोज कर लें, जितना जल्दी हम इसको ट्रीट कर लें, उतना ही इसका बेहतर सर्वाइवल होता है। इसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है उसकी ड्यूरेशन के ऊपर, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि नॉर्मलाइज होने के बाद भी, इवन जिनमें हमने कीमोथेरेपी दी होती है
उसमें नॉर्मलाइज होने के बाद भी कुछ अरसे के बाद रिकरेंस हो जाती है, इसीलिए तो हम लॉन्ग टर्म फॉलो अप करते हैं। और यही वजह है कि हम जब एक दफा जब लेवल नॉर्मल हो जाए उन पेशेंट में जिसमें हमने कीमोथेरेपी दी, तो उसके बाद भी 6 हफ्ते तक कीमोथेरेपी के 3 कोर्सेज और दे दें, उसमें रिकरेंस रिस्क कम हो जाएगा। तो इसलिए कि जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होते हैं, इधर उधर जो सेल्स होते हैं वो रिकरेंस कर सकते हैं। ये हर मेलिग्नेंसी का एक बेसिकली क्राइटेरिया होता है कि आप मैडम इन्वेजिव मोल में हमें कंफर्म करने के लिए दोबारा ये सैंपल लेना होगा मायोमेट्रियम का? नहीं, जब एक मैस आ गया, क्योंकि अब हम जो बेस करते हैं ना कोरियोकार्सिनोमा वगैरह के डायग्नोसिस, वो बेसिकली बीटा ईसीजी, ये ट्यूमर मार्कर है ना इसका, तो हम बीटा ईसीजी पे करते हैं। अब उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके हमें लेवल से पता चल जाएगा। राइजिंग लेवल्स हैं तो इसका मतलब है दोबारा से वो रिकर हो गया और अब वो कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कंप्लीट मोल के कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस 15 से 20% है। वी ऑल नो दैट। तो उसमें हमने अब इसमें 15 या 20% वाले पेशेंट कौन से हैं, ये हमें पता चलेगा बीटा ईसीजी लेवल्स को मॉनिटर करने के साथ। तो बीटा ईसीजी लेवल्स एक ही लेवल पे रहें फॉर 3 वीक्स, या उसमें राइज करना शुरू हो जाए फॉर 3 वीक्स और एक ही लेवल पे रहें फॉर 4 वीक्स, तो इसका मतलब ये है कि ये अब कोरियो वाली स्टेज में जा रहा है। क्योंकि राइजिंग लेवल जो है वो कोरियोकार्सिनोमा का एक करेक्टरिस्टिक होती है। अमूमन इन्वेजिव मोल और प्लेसेंटल साइट ट्यूमर्स में बीटा ईसीजी बहुत ज्यादा रेज्ड नहीं होते, और वो ज्यादा बहुत रेज करते भी नहीं है, उनका एक प्लेटू डेवलप हो जाता है। यानी या तो उनका डिक्लाइन बहुत कम उस पे स्पीड पे हो रहा होगा, या वो एक ही लेवल पे मौजूद रहेंगे। तो ये प्लेसेंटल साइट ट्यूमर्स या इन्वेजिव मोल में भी इवन ये ऐसा ही सिनेरियो होता है, लेकिन कोरियोकार्सिनोमा में टिपिकली ये लेवल राइज करना शुरू हो जाए। तो दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट जहां पे हम फिर उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, और वहां से फिर हमने उसके रिस्क स्कोरिंग के हिसाब से हमारा प्री ट्रीटमेंट लेवल इतना था, और अब जो इसके सारे रिस्क स्कोर हैं वो हमने सारे, यानी रिस्क स्कोरिंग में क्या होगा, जब हमने डायग्नोस किया तो हमने फिर उसका मेटास्टेसिस के लिए वर्कअप भी करवाया, वो उसकी रिस्क स्कोरिंग में शामिल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये थोड़ी सी है जरा कॉम्प्लिकेटेड चीज, लेकिन मैडम नहीं, डेफिनेट डायग्नोसिस कैसे करेंगे इन्वेजिव? जी हम इन्वेजिव मोल की डेफिनेट डायग्नोसिस कैसे बेसिकली करेंगे? इन्वेजिव मोल को हम इनिशियली ट्रीट करते हैं विद कीमोथेरेपी। अगर ठीक है बहुत कीमो सेंसिटिव नहीं है, बट सम केसेस डू रिस्पॉन्ड। ये प्लेसेंटल साइट ट्यूमर की तरह का कीमो रेजिस्टेंट नहीं है, तो लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिसमें टेम्परेरीली बीटा ईसीजी लेवल नीचे चले जाते हैं, वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। ऐसे केसेस में हमें या तो सेगमेंटल रिसेक्शन, बट इफ अगर फर्टिलिटी कंसर्न ना हो तो हिस्टेक्टमी इज अ बेटर चॉइस। तो वहां ये फिर इसका बेसिकली फाइनल इसका ट्रीटमेंट बनता है। मैम डॉक्टर नसरीन का सवाल ये था कि इन्वेजिव मोल जो है उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हम रिसेक्शन बेटा कंफर्म, इसमें बेसिकली जो कंफर्मेशन होती है ना उसमें इसमें हमेशा मायोमेट्रियल सेल्स का मौजूद होना जरूरी होता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ द इन्वेजिव मोल। अब अमूमन जो हम डायग्नोस्टिक जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं उसमें इतना हम थोरो क्यूरेटाज तो नहीं करते कि उसमें हमें जो है वो पता चल जाए कि ये मायोमेट्रियल इन्वेजन है या नहीं है, क्योंकि इन्वेजिव मोल में टिपिकली it invades into the myometrium, जबकि प्लेसेंटल साइट ट्यूमर में it can remain limited to the endometrium or it can even penetrate into the myometrium। उसमें may और may not be अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस उसमें एक जैसी होती है। अलबत्ता जो बाकी हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है वहां पे फिर हमें आके थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता चलती है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इसकी जो डायग्नोसिस है या डिफरेंशिएशन है बिटवीन इन्वेजिव मोल एंड प्लेसेंटल साइट ट्यूमर, वो थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन हम अल्ट्रासाउंड एमआरआई क्यों नहीं करवा लेते? एमआरआई करवा सकते हैं, क्योंकि मायोमेट्रियल इन्वेजन जहां पे भी हमने देखनी है वहां पे हमें एमआरआई ही हेल्प करेगा, अल्ट्रासाउंड नहीं हेल्प करेगा।
लेकिन हम बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मायोमेट्रियल इन्वेजन भी इन दोनों केसेस में हो सकती है, यानी इन्वेसिव मोल में भी और प्लेसेंटल साइट ट्यूमर में भी। तो ये चीज मायोमेट्रियल इन्वेजन चाहे एंडोमेट्रियल सी है और चाहे इस तरह की सिचुएशंस हो, उसमें एमआरआई ही ज्यादा बेहतर रहता है। फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस सीटी इज अ बेटर चॉइस, या पेट स्कैन वगैरह। मतलब और मैडम मैम अगर वो मैम कीमो को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो इन्वेसिव है, अगर नहीं कर रहा तो प्लेसेंटल साइट है, मतलब इसी से हाँ, पता चलेगा। मतलब कीमो को रिस्पॉन्ड ये कर जाएगा टू सम एक्सटेंट। इन्वेसिव मोल इज ये बेहतर रिस्पॉन्ड करता है एज कंपेयर टू प्लेसेंटल साइट ट्यूमर टू कीमोथेरेपी। तो इसलिए हम इनिशियली इसको देते ही कीमोथेरेपी है, अनलेस इस तरह का पेशेंट हो जिसके पहले 4 बच्चे हैं और अब 41 ईयर्स की होगी। ये इसमें चूंकि चांसेस हैं फॉर द परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इवन इन द केस ऑफ इन्वेसिव मोल, तो उसमें फिर हमारा हिस्टेक्टमी कर देना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, लेकिन ओके। जहां पे फर्टिलिटी का मसला आ जाता है कि हमने यूट्रस को सेव करना है, वहां पे फिर हमें जरा थोड़ी सी मुश्किल होती है कि हम पहले उसको इनिशियली कीमोथेरेपी दें, रिस्पॉन्ड कर जाएगा तो ठीक है, इसका मतलब है ये इन्वेसिव मोल है। अगर नहीं किया तो प्लेसेंटल साइट है। ठीक है, तो उसमें अगर लोकली इन्वेजिव है, इन्वेजिव मोल में, तो उसकी सेगमेंटल डिसेक्शन कर दो, अमूमन लोकली इन्वेजिव ही होता है। और अगर नहीं है तो फिर, क्योंकि ये जो प्लेसेंटल साइट है ना, ये सिर्फ प्लेसेंटा की जगह पे ये होता है, प्लेसेंटा की जगह पे ही होता है। वाइल इन्वेजिव मोल कैन बी एट एनी अदर साइट, लेकिन अमूमन ये लोकली इन्वेजिव होता है। ये नहीं कि पूरा यूनिफॉर्मली पूरी यूट्रस में हो जाए। ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब इसमें अब, हाँ जी, अब ये तो हमारा डिस्कस हो गया कि ये कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो। अब सपोज एवरीथिंग गोज ओके, यानी अब ने ये भी डायग्नोसिस कर लिया कि ये इसका मोलर था और ये विद इन 8 वीक्स अगर ठीक हो गया तो हम 6 महीने विद ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, कॉम्प्लिकेशन को भी डिस्कस कर लिया। सपोज ये कोरिया में डेवलप हो जाता है, सपोज इसमें लेवल राइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी 25,000 पे पहुंच गए। ये 25,000 तो था पोस्ट इवैक्यूएशन, लेकिन फर्ज किया ये 15,000 पे पहुंच के भी मैस कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, 15,000 तक डाउन हुए, उसके बाद दोबारा 20 पे चले गए आफ्टर अनदर 1 वीक। अब क्या करेंगे? मैम इसकी फिगर स्कोरिंग करेंगे। इनिशियली ये था जो है वो स्लो डिक्लाइन था, एज टू कैन असेस के 25,000 से 15,000 तक पे आया 6-7 हफ्ते में, बट आफ्टर अनदर 1 वीक इट रेज टू 20,000। अब क्या करेंगे? मैम इसकी फिगर स्कोरिंग करेंगे और क्या डिसाइड करेंगे? करेंगे। हाँ जी, मैम अब मैम हम जैसे सोच सकते हैं कि ये, क्योंकि ये अब इतने लेवल्स के साथ जब एकदम राइज करना शुरू हो गया, तो ये ना इन्वेसिव मोल हो सकता है ना प्लेसेंटल साइट हो सकता है, और कोई हमें मैस नजर नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड जब हमने करवाया, एंड द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, तो यस probably it's chorio. But for confirmation of the diagnosis of chorio, we don't need any histopathological diagnosis now. पहले हम उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते थे, और उसमें शीट्स ऑफ सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हमें नजर आते थे। विलाई कैन बी मे नॉट बी प्रेजेंट, ज्यादातर आर नॉट प्रेजेंट, शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं, विलाई अमूमन नहीं होते। तो अब इसको हम करेंगे फिगो स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। फिगो स्कोरिंग के हिसाब से फिर आप इसमें क्या करोगे? मैम ये इसकी एज 41 है, तो मैम 1 स्कोर होगा। एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी जो है टर्म थी, मतलब लाइव बर्थ था, टर्म तो तो 2 स्कोर बेसिकली होगा। आपने उसको उस वक्त बैठ के फिगो स्कोरिंग करनी है, क्योंकि जी मैम। फिगो स्कोरिंग जब आप करोगे तो ही आप उसके बाद अगली उसमें चीजें बता सकते हो। ठीक है, जी अच्छा, मैम। और ठीक। प्री ट्रीटमेंट बीटा आईसीजी का भी स्कोर मैम इसका 2 होगा, क्योंकि 20,000 है, 10,000 से 1 लाख तक 2 स्कोर है। हम्म और हम्म मैम इसकी जो इंटरवल मंथ फ्रॉम प्रेगनेंसी, तो अब 8 वीक्स पे हम बात कर रहे हैं, 8 वीक्स की बात हम कर रहे हैं। जी मैम। हम्म, मैम इसका 8 वीक्स, तो मैम इसका भी स्कोर 2 होगा। क्या होगा? सॉरी 2 नहीं मैम, 1 4 1 to 6 होगा? मंथ, 4 to 6 मंथ 1 है मैम स्कोर। अच्छा, ठीक है।
सॉरी 1 मैम, होगा। इसका होगा 0 0 0 0 मैम, लेस देन Yeah. 4 months हाँ, 0 है। क्योंकि ये वीक्स नहीं है, यस मंथ्स मैम, में होता है फिगो यस स्कोरिंग यस में। मैम, यस मैम, हम्म 0 ठीक होगा है। स्कोर। तो मैम हाँ, ये होगा लेस देन 6 स्कोर है इसका। तो लेस देन 6। लेस देन 6 एस ओके, पेशेंट इज स्कोर लेस और देन बीटा 6। ईसीजी भी इसका कम ही है, इतना बहुत ज्यादा नहीं है। जी तो फिर हम जी क्या करेंगे? मैम, with the multidisciplinary team, as patient has a score less than 6, which is a low risk, so I will arrange uh, low risk, so treatment will be the single agent, 50 milligram IM methotrexate on the alternating day with the folinic acid, 15 milligram orally for 1 week, followed by six rest days. हम्म तो मैम इसको मैम इसकी जो है इसको मैम वो करेंगे, क्या कहते हैं मैम, क्या? मैम सेंटर जो वो है ऑन्कोलॉजिक सेंटर में भी इसकी वो करवाएंगे, एंट्री करवाएंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करेंगे, हाँ और मैम इसको कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, जैसे ठीक है, उसमें methotrexate। बेसिकली वेरी सिंपल आंसर कि इसमें हम मेथोट्रेक्सेट देंगे, साथ फोलिनिक एसिड रेस्क्यू देते जाएंगे। जी मैम, ठीक है, और जी इसमें 2 हफ्ते के बाद हम रिपीट भी कर सकते हैं, और टोटल ये 8 डेज की रिजीम होती है, जिसमें 4 दिन मेथो के और 4 दिन फोलिनिक एसिड के होते जी मैम, हैं। और ये हर 2 हफ्ते के बाद हम रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बीटा ईसीजी लेवल, और अमूमन हम इसमें 4 से 5 कोर्सेज दे सकते हैं। बट हाउ यू विल फॉलो अप द केस लेटर ऑन? अब ये आपने ये सारा जो दे दिया, उसके बाद फॉलो अप इसका कैसा होगा? क्योंकि अब आपने कोरियो कार्सिनोमा का फॉलो अप करना है, पहले आप मोलर का कर रहे थे। जी मैम। मैम हम्म इसका फॉलो अप होता है मैम, कि ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक्स इसका वीकली फॉलो अप करेंगे, हम्म फिर ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 2 वीकली करेंगे, और हम्म फर्स्ट ईयर फिर मैम फर्स्ट ईयर में मंथली करेंगे, फिर सेकंड ईयर में हम्म 2 मंथली, फिर थर्ड ईयर में 3 मंथली, फोर्थ ईयर में मैम हम्म 4 मंथली, और जो है इज इट सो? फिर मैम, ये लो रिस्क पेशेंट था, यस मैम ये तो इतने सालों तक हर 2 हफ्ते बाद, हर 4 हफ्ते के बाद, इज विल इट बी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट? हम्म मैम इसका फिर मैम इसका अगर नॉर्मल आ गया तो फिर मैम इसका फॉलो हम्म फिर मैम क्योंकि उसको देखो 3 20,000 है अभी, ठीक है। जी मैम, जी मैम, लो रिस्क है, जी आपने मैम, सिंगल एजेंट थेरेपी से उसको ट्रीट किया, तो जी मैम। मतलब इसको आपने हर जो है वो इसमें ट्वाइस अ वीक किया था फॉलो अप, या वीकली किया था आपने? मैम इसमें मैम इसकी जो इसका मैम 2 वीकली करेंगे मैम उसको, क्योंकि उसको 1 वीक तो कीमोथेरेपी दी है, हम्म तो मैम नहीं, इसका, कीमोथेरेपी, ये पोस्ट ट्रीटमेंट की फॉलो अप की बात कर रहे हैं, अच्छा मैम वीकली पोस्ट वीकली ट्रीटमेंट। करेंगे मैम, फिर हम्म फर्स्ट 6 वीक मैम वीकली करेंगे, हम्म फिर मैम नेक्स्ट 6 मंथ्स उसका 2 वीकली करेंगे। वीकली टिल द लेवल्स आर नॉर्मलाइज्ड फॉर 3 रीडिंग्स, ठीक है। उसके बाद आप मंथली करते हो फॉर 1 ईयर, फिर उसके बाद आपने 3 मंथली करना है, फिर 6 मंथली पे आ जाते हैं, ठीक है। इस जी तरह मैम, से आपने करना होता है, क्योंकि हर हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद करोगे तो पेशेंट तो बेचारा, उसके लिए तो कन्वीनियंट नहीं। मैम मंथ 6 वीक फर्स्ट 6 वीक उसका वीकली करेंगे, फिर मैम मंथली करेंगे, वो इसलिए फिर कि एक लेवल्स जी नॉर्मल हो गए, वंस द जी लेवल्स आर नॉर्मल, तो फिर आप उसका टाइम बढ़ा देते हैं, फिर आप उसको मंथली पे ले जाते हैं, जी यानी मैम, वीकली 3 रीडिंग्स जो वीकली बेसिस पे आपने करवाई वो नॉर्मल आ गई, तो फिर जी मैम, आपने उसका इंटरवल बढ़ाना है, ठीक है, और हर साल उसका जी मैम, इंटरवल फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जी मैम। चलें जी, अब ये तो हो गया जो कि कोरियो मैम कार्सिनोमा। जी, मैम ये 10 इयर्स तक करेंगे, या मैम ये कितने इयर्स बेसिकली तक करेंगे? अब जैसे इस पेशेंट में, तो अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी इसमें तो हम जो इसके बाकी फर्दर जो इसके हैं कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह से रिलेटेड चीजें, वो इसमें जरूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये 41 यस ईयर्स मैम, ऑफ एज है एंड जी कंप्लीटेड पेरिटी है, तो उसमें हमारे जो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें क्या होगा?
मैम क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा में एक असूल ये होता है कि जब लेवल्स नॉर्मल हो जाएं जी और मैम, कीमोथेरेपी को दिए हुए 1 साल हो जाए तो फिर आप पेशेंट को अलाउ करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन 1 year के बाद अगर अगर फर्ज किया इस पेशेंट में, जैसे इसमें हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए द फाइनल कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसलिए जो है वो इसमें हम फाइनली इसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन क्या ऑफर करेंगे इसको। Ma'am, according to FSRH guideline, when HCG undetectable, there is no restriction of any contraception method. When HCG is decreasing, rest all methods are you can make one except IUCD and Marina Can and be, the but for Kappa. this patient we will offer her tubal ligation। हाँ, yes ma'am. ठीक है, Yes. ट्यूबल हाँ, लाइगेशन। ठीक, है। तो जी मैम। इसलिए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। और लेकिन जो दूसरी बात है जिनमें फर्टिलिटी इश्यूज है उसमें हम यही है कि इसमें जब लेवल्स नॉर्मल हो जाएं, कीमोथेरेपी को दिए हुए 1 साल हो जाए, तो फिर हम पेशेंट को अलाउ करते हैं प्रेगनेंसी। और जिस जी। पेशेंट में हमने कीमोथेरेपी दी थी, जैसे मोलर है तो मोलर में तो हमें कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं थी, हमने उसको रूटीन के मुताबिक फॉलो किया। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम उसको फॉलो अप करने की या उसको कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, यानी अगली प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन अगर हमने कीमोथेरेपी दी है तो फिर अगली प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी या सेक्शन व्हाटएवर, उसके बाद हम उसका फॉलो अप भी करेंगे जरूरी। ठीक है, जी मैम। क्योंकि उसको पहली दफा हमने कीमोथेरेपी दी यानी वो कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गई, तो वहां पे फिर उसका फॉलो अप जरूरी हो जाएगा। तो ये होगा उसका नेक्स्ट प्रेगनेंसी के हिसाब से। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं वो वाला सिनेरियो जो हमने दरमियान में छोड़ दिया था। यस मैम, वो पार्शियल मोड जो वो हाँ जी, एक जी मैम एक्सक्यूज मी मैम अस्सलाम हाँ वालेकुम मैम। जी मास्टर। उस पेशेंट को आफ्टर सेकंड डिलीवरी उसके बाद हम कितना टाइम कीमोथेरेपी देंगे, एक देंगे या उसका फॉलो अप ही किसको रखेंगे? किसको? जो पेशेंट पहले कोरियो में थी उसके हाँ, बाद उसमें सेकंड कीमोथेरेपी मिली कीमोथेरेपी और मिली, उसके उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको अगली प्रेगनेंसी के बाद हम मॉनिटर करेंगे, फॉलो अप करेंगे। इसमें कीमोथेरेपी का भी कहीं जिक्र नहीं है। जब तक हम फॉलो अप आइडेंटिफाई ना करें, रिकरेंस चांसेस ऐसा तो नहीं है कि 100% होते हैं, इसलिए प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर जरूर करेंगे। अच्छा, और एक और चीज यहाँ पे ये कि इसमें बार दफा जिक्र प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का भी आता है, यानी ऐसा पेशेंट जिसको आपने, हम रूटीन में तो मॉनिटर करते हैं ना, लेकिन एक यही पेशेंट, सपोज शी इज लॉस्ट फॉर फॉलो अप, she says that I cannot come back again and again at weekly interval, यहाँ बहुत दूर से आई है पेशेंट, ये नॉन कॉम्प्लाइंट है, तो उसमें हम क्या प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का कोई रोल होता है? जी मैम उसमें हम दे सकते हैं क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं है उसमें वो we will give और उसमें कम से कम हम 1 कोर्स उसको कीमोथेरेपी का जरूर दे के भेजेंगे, यानी मेथोट्रेक्सेल लगा के भेजेंगे अकॉर्डिंग टू हर बॉडी वेट। तो मैम 1 कोर्स मींस 3 डोजेस जो 1 हम कोर्स नहीं, 1 कोर्स का मतलब ये कि एक इंजेक्शन जो उसके बॉडी वेट के हिसाब से होगा। हम एवरेज 60 kg के पेशेंट को 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाते हैं। मैम जो जो हमारी folic रूटीन है acid उसके होता जो इवन टॉपिक्स के लिए भी। मैम अच्छा, दूसरी जो बात ये फॉलोइंग कि जो मेथोट्रेक्सेड है उसका एक ऑल्टरनेट एक्टिनोमाइसिन डी भी है, और एक्टिनोमाइसिन डी इज अ बेटर ऑल्टरनेट ऑफ मेथोट्रेक्सेड, क्योंकि एक्टिनोमाइसिन डी के साथ रिकरेंस रेट थोड़ा सा कम होता है, यानी उसका हम कह सकते हैं कि बेटर इफेक्टिविटी है उसकी एज कंपेयर टू मेथोट्रेक्सेड। मैम लेकिन उसमें मैम कहा जो गया फॉलोइंग उसमें स्टडीज इतनी नहीं है इसलिए हाँ, एक्टिनोमाइसिन डी स्टडीज इतनी नहीं है और अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है, तो इसलिए और हम मैम यूजुअली देते नहीं है, वी आर नॉट यूज टू यूज इट। एक वो मैम चीज है जो हम कॉमनली देते रहते हैं, उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता है, सब चीजें पता है, सारे डायनामिक्स पता है, फार्माकोडायनामिक्स, तो हम वही ड्रग प्रेफर करते हैं जो हम देते रहे हों पेशेंट्स पे, जिसका हमें और सारा। मैम उसका जो सॉरी मैम उसका जो आपने फॉलो अप वो लाइफ टाइम नहीं होगा जिसने कोरियो में इसका जिसने मैम लेकिन देखो ये तो होता है उनमें। अब जैसे अगर हम किसी की स्टेक्टमी कर दें, इस पेशेंट में हम स्टेक्टमी कर दें और उसमें तो फिर फॉलो अप उस तरह से जरूरत नहीं है, अनलेस देयर वर सम मेटास्टेसिस। कोरियो में हमने मेटास्टेसिस को जरूर रूल आउट करना,
कि मेटास्टेसिस हैं, सबसे पहले तो लंग्स में जाते हैं, उसके बाद बाकी जगहों पे जाएंगे। तो मेटास्टेसिस के हिसाब से भी होता है। और दूसरी चीज ये कि अब यही कोरियो वाली पेशेंट, इसको हम ये भी अलाउ कर देते हैं कि ये प्रेग्नेंट भी हो जाए, और प्रेगनेंसी इसमें तकरीबन 80% इफेक्टिव होती भी है। तो फॉलोअप फिर भी लॉन्ग टर्म फॉलोअप का मतलब ये है कि इसमें अगली प्रेगनेंसी के बाद भी हमने इसमें फॉलोअप करना है, क्योंकि ये कोरियो में था। और कोरियो का मतलब ये है कि इसमें हमने कीमोथेरेपी जरूर दी, चाहे वो सिंगल एजेंट थी चाहे वो मल्टी एजेंट थी। तो इसलिए जो है वो इसमें जो है वो उस तरह से। लेकिन अगर फर्ज किया पेशेंट को हम कीमोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं, इसमें हम अल्ट्रा वो भी नहीं करते, हिस्टेक्टमी भी नहीं करते इस पेशेंट में, तो ये वाला फॉलोअप इसका ईयरली बेसिस पे चलता रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, वो मैडम हम अब आपने वापिस हाँ मैम जी, वो वाला जो ट्विन प्रेगनेंसी मोलर वाला का था, बताया। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ, लेकिन वो बीच में फिर और चीजें आ जाती हैं। मैम तो जो अब ये जो ट्विन ट्विन प्रेगनेंसी है, इसमें एनीवन वांट्स टू गिव कमेंट? ट्विन मैम प्रेगनेंसी, एक में मोलर और एक में नॉर्मल बच्चा। मैम एक में मोलर और एक में नॉन सॉरी वन वायबल प्रेगनेंसी है, तो मैम उसमें हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे उसके के इसमें ये रिस्क हो सकता है कि अर्ली फीटल लॉस हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ और प्री इक्लेम्पिया के चांसेस है। फिर मैम अगर वो आगे बढ़ाना चाहती है तो मैम वो कर सकती है, वरना मैम उसकी कर सकते हैं, हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन वो अगर जाना चाहती है तो उसको मैम रिस्क बता देंगे उसको, और मॉनिटर करते आएंगे उसको मैम थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें बेसिकली फॉलोअप पे हम अब नहीं जाते, क्योंकि फॉलोअप को हमने काफी एट लेंथ डिस्कस कर लिया। लेकिन जी इसमें मैम। और कोई अपना कमेंट देना चाहेगा? ट्विन प्रेगनेंसी, एक में मोलर एक में नॉर्मल बच्चा। मैम, डू यू ऑल एग्री विद दिस और यू हैव सम डिफरेंट ओपिनियन? मैम शी इज वेरी राइट। पेशेंट को काउंसिल करेंगे कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी के, और बेबी का आउटकम 30% होता है फुल टर्म तक इसके, तो ठीक है, लाइव 30% उसको यही काउंसिल करके हम लिख तकरीबन लेंगे। 40% तक चला जाता है, 40 बल्कि 50% तक भी कह सकते हैं। और लेकिन हम मैम, इसमें इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, यस मैम, अब जब क्लोजली। एक साइड पे मोलर है और दूसरी साइड पे है, तो डेफिनेटली अगर अब हमें ये नहीं पता ये मोनोकोरियानिक है या मोनोएम्नियोटिक है, उसमें तो इस तरह से नहीं सिचुएशन होती, ये डिफरेंट सेक्स है। मैक्सिमम इट कैन बी मोनोकोरियानिक डायएम्नियोटिक। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जो है वो इसमें प्लेसेंटल शेयरिंग हो सकती है, वहां पे जो है वो थोड़ा सा मसला हो सकता है ऑफ अ प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई, यूजुअली ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आईयूडी वाले चांसेस हो सकते हैं। सो क्लोज फीटल मॉनिटरिंग विल बी नीडेड इन सच केसेस, पेशेंट की सारी काउंसलिंग करके उसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताते हुए। हैवी पीवी ब्लीडिंग के भी मैम, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्योंकि मोलर ट्विनिंग के तो केसेस। अपने सारे मसले मसाइल अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, उसको तो हम नेगेट नहीं कर सकते, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये बाकी जो है वो उसमें इस तरह से हम चल सकते हैं। तो मैम एक क्वेश्चन इसमें है। पेशेंट के की ओपिनियन के साथ हमने चलाना है, एंड एज लॉन्ग एज द बेबी इज ओके एंड इज ग्रोइंग नॉर्मली, तो तब तक हम इसको चलाएंगे। अदरवाइज देन वी एट एनी स्टेज इफ देयर इज सम टोरेंशियल हेमरेज, सपोज यही वाली जो मोलर वाली प्रेगनेंसी वाली सैक है, उसमें से ब्लीडिंग एक्सेसिव शुरू हो जाती है, then just for the maternal safety we have to terminate the pregnancy there and यस then। मैम। ठीक है, अब उसमें मसला ये होता है कि अगर फर्ज किया हमें टर्मिनेशन की जरूरत पड़े, तो एक तो बच्चा है और दूसरा मोलर प्रेगनेंसी है, एंड द पेशेंट इज ब्लीडिंग एक्सेसिवली, उस वक्त आप क्या करो? मैम अगर चाहे पेशेंट ब्लीड ना कर रही होती तो हम पहले मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जाते, क्योंकि ये बेबी फुली फॉर्म्ड है। तो मेडिकली हमने पहले जो फॉर्म्ड बेबी है उसको एक्सपेल करवाना होता है और उसके बाद एवेक्यूएशन। लेकिन ये हेविली ब्लीड कर रही है तो हमें सर्जिकल एवेक्यूएशन बाय सीनियर पर्सनैलिटी जानी चाहिए। हाँ, इसमें इवन मतलब ये भी है कि मैटरनल सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, आप उस वक्त फिर बच्चे को भूल जाते हो। इवन डेड बेबी, प्लेसेंटल एब्रप्शन, पेशेंट स्वेयर ब्लीड कर रही है, शॉक में जा रही है, तो भी आप उस पर सक्शन करके यूट्रस को इवैक्यूएट कर रहे होते हो, चाहे उसमें डेड बेबी ही है, बट फॉर मैटरनल सेफ्टी। लेकिन अगर फर्ज किया इसमें ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ब्लीडिंग ना होने के साथ हम टर्मिनेशन क्यों करेंगे? उसमें उस वक्त अगर कोई आईयूडी हो जाए, या कोई स्वेरली ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस है, या कोई एनॉमलस फीटस है,
तो उस सूरत में अभी तो 12 वीक्स की थी ना, तो लेटर ऑन हमें पता चलेगा। देन इन दैट केस वी विल फर्स्ट expel the fetus and then we will evacuate the uterus as per routine procedure जो suction evacuation के साथ होता है। ठीक है, तो मैम इसमें इस फिर हमने इसको इस प्रेगनेंसी तरह से में करना। एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की कोई मतलब एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग क्या होगी इसमें, मतलब कि जो हम एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग मीन्स के आपने उसको जैसे 20 वीक से हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, फिर हम 24 वीक्स पे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं, फिर हम उसके बेसिकली तो डॉपलर स्टडीज के साथ चल रहे होते हैं, फीटल बायोमेट्री है उसका जो है वो, बाकी बायोफिजिकल प्रोफाइल तो 32 के बाद ही आता है, लेकिन ये वाली सारी चीजें हैं जो फिर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे चलेंगी, नॉट एज पर रूटीन, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। वैसे भी ट्विंस नॉर्मली भी अगर हों तो उसमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होती है, खास तौर पे जब प्लेसेंटल शेयरिंग वाली चीज होती है, क्योंकि वहां पे आपने जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है जैसे टीटीटीएस वो आपने अर्ली आइडेंटिफाई करना होता है। एक में पोली है, एक में ओलिगोआइडेमनियोज है, एक का बच्चा ओवरग्रोन है, एक जो है वो उसमें आईयूजीआर बेबी है, तो ग्रोथ स्कैन चल रहे होते हैं उसके साथ साथ और फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, तो ये मैम वाली ट्विन जो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होती है। ट्विन प्रेगनेंसी और पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी, हम्म इसमें जो है मैम पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में अर्ली में ही मिस्ड हो जाती है, तो हाँ सिर्फ जी, इसी बेसिस पे उनको नहीं डिफरेंशिएट उसमें कर उसमें सकते ये हैं होता है, उसमें ये होता है देखो कि जो इवन कंप्लीट मोलबी या पार्शियल मोलबी, उसमें जो अर्ली तकरीबन 7 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है उसमें हमें बार दफा मोलर टिश्यू नजर नहीं आता, यानी हमें सिस्टिक जो विलाएं हैं वो नजर नहीं आएंगे, रादर इट विल बी प्रेजेंटेड एज एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन, या इसमें जो है वो कोई फीटल पार्ट्स हमें विजिबल नहीं होते, सैक है लेकिन फीटल पार्ट्स कहीं नजर नहीं आ रहे, इन सारों में सस्पिशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी शुड बी कंसिडर्ड। और ऐसे और वैसे भी इसीलिए हर एबॉर्टस जो है वो भेजना चाहिए फॉर फर्दर कैरियोटाइपिंग, खास तौर पे अगर ऐसी हिस्ट्री आपको लग रही है, हिस्ट्री सजेस्टिव और द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, तो ऐसी सूरत में तो फिर और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाज दफा जो मोलर रिकर भी कर रहे होते हैं कुछ केसेस में, तो उनमें 3 मोलर के बाद साइटोजेनेटिक एनालिसिस भी जरूरी हो जाता है। लेकिन वैसे ही आप हर जो एबॉर्शन है, स्पोरेडिक एबॉर्शन इवन, आप उसमें उसका टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और उसमें जो है वो एसोसिएशन विद द मोलर प्रेगनेंसी इज फाउंड टू बी मोर कॉमन एज कंपेयर टू जो स्पोरेडिक मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है सारा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो मैडम इनको लीनार रजिस्ट्रेशन भी तो करवानी होगी ना इस जी पेशेंट को? हाँ लीनार रजिस्ट्रेशन भी करवानी होगी ना? हाँ जी, वो रजिस्ट्रेशन हमारे, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी रजिस्ट्रीज है नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस की रजिस्ट्री हो या कोई मेलिग्नेंसी की रजिस्ट्री हो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस की रजिस्ट्रीज हैं, खास तौर पे जैसे HIV वगैरह पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव जी अगर मैम। आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो उसकी रजिस्ट्री मस्ट होती है, क्योंकि उसमें फिर जो एक सारा वो स्कैनिंग या स्क्रीनिंग या बाकी जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो बड़ी जरूरी हो जाती है। जी जी मैम, ठीक है, थैंक मैम ये पेशेंट अगर आगे चल के मतलब के ब्लीड करती है 30 मतलब 32 फिर हम कैसे मतलब टर्मिनेट, फिर क्या वो करेंगे नहीं वो ब्लीड अगर सर्जरी? करती है जाहिर है उस वक्त तो बेटा बड़ा बच्चा है उसमें, तो जाहिर है उसमें अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, क्योंकि अगर तो ब्लीडिंग माइल्ड है तो फिर आप उसमें वो उस वक्त सिचुएशन आप देखोगे, फीटल सिचुएशन भी देखोगे, उसकी प्रेजेंटेशन भी देखोगे, दिस विल बी अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब उसके डिसीजन है। लेकिन अगर फर्ज किया उसमें कोई भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाली चीज है या पेशेंट ज्यादा ब्लीड कर रही है, तो जाहिर सेक्शन के साथ ही निकालोगे ना, और सेक्शन के साथ जब निकालोगे तो उसमें सारा कुछ फिर उसी वक्त होगा। ठीक है, बिकॉज वायबल जेस्टेशन पे है, और फर्ज किया उसमें जो है वो उसमें मोलर प्रेगनेंसी भी है, तो फिर उसमें उसको निकालना तो ऐसे ही है ना कि बच्चा भी सेव हो जाए, फिर यूट्रस भी आप उसको इवैक्यूएट उसी वक्त कर देते हो। ठीक है, अगरचे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, वैसे भी एक नॉर्मल सेक्शन में डबल देन नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी ब्लीड होता है। ठीक है,
चलें जी, अब इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम एक तो आप लोगों ने खैर कुछ टॉपिक बताए ही हुए हैं, लेकिन अगर उसके अलावा आप लोग कुछ कोई ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करना चाहो तो बता सकते हैं। मैडम ठीक। मैम पर्पीरियड मेरा सेप्सिस कर दें। वही है जी क्या? मैम, पार्शियल मोलार पर्पीरियड प्रेगनेंसी सेप्सिस और मैम। ट्विन मोलार को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्कैन पे? देखो, जो पार्शियल मोल है ना, पार्शियल मोल का मतलब ये है कि एक पूरी सैक में बच्चा भी है, मोल भी है, ये पार्शियल मोल कहलाता है। दूसरी सैक में टोटल मोल है। अब अगर तो आपको सैक लैदा से विजिबल नजर आ रही है, और ये खास तौर पे ज्यादा बेहतर नजर आएंगी अगर डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक है, क्योंकि डिवाइडिंग मेम्ब्रेन उसकी थिक होती है। तो अगर तो उस पे नजर आ जाता है तो ठीक है, वरना इसको बाज दफा अल्ट्रासाउंड पे असेस करना, यानी एक पार्शियल वाले प्लेसेंटा को एक मोलर में तो प्लेसेंटा होता ही नहीं है, लेकिन मोलर टिश्यू अब कैसे है जो वो डिफ्रेंशिएट करना एक वाकई चैलेंज होता है। मैम फीटल लेकिन कैरियोटाइप भी करते हैं ना, फीटल कैरियोटाइप का लिखा हुआ था गाइडलाइन में। मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर ये पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर साइटोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो आपको गाइड कर देता, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक और भी पार्शियल और कंप्लीट मोल को वो करते हैं हम डिफ्रेंशिएट, कि बाज दफा जो इसमें होता है P57, ये भी एक जेनेटिक म्यूटेशन है। ये जी चीज ये जब हम करते हैं ना इस पे टेस्ट, बच्चे के उस पे अगर उसमें ये मौजूद है तो ये पार्शियल है, अगर ये नहीं मौजूद तो फिर ये पार्शियल नहीं है। फर्दर टेस्टिंग विल बी बाय कैरियोटाइपिंग, और कैरियोटाइपिंग में जो पार्शियल वाला बच्चा है उसमें क्या होगा, ट्राइप्लॉइडी, यानी उसमें ओवम के भी क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसमें दो स्पंज, क्योंकि डायस्पर्मी है ना अलोंग विद एन ओवम, तो ये डाइप्लॉइडी होती है, यानी उसमें तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल जाते हैं, 23 23 प्लस 23। तो उसका जो कैरियोटाइपिंग होगी उसमें हमें वो पता चल जाएगा। तो हमें, और ये पार्शियल मोल में ही होता है, क्योंकि कंप्लीट मोल में तो डिप्लॉयड होता है, लेकिन वो टोटल पैटर्नल इन ओरिजिन होता है। पैटर्नल होता है लेकिन होता एक्स क्रोमोसोम्स है, यानी ये 46 डबल एक्स होगा जो कंप्लीट मोल है। डबल जो 46XY है वो नहीं होता, 46 डबल एक्स होता है, और ये वाले एक्स क्रोमोसोम जो ये दोनों स्पर्म से डिराइव्ड होते हैं, मदर का अपना एक्स क्रोमोसोम इसमें ऐड नहीं होता, क्योंकि जो मदर का जो एक्स क्रोमोसोम्स है ये पूरी बॉडी फीटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। अमूमन जो पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम है दैट इज अ जंक मटेरियल। जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ज्यादातर सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, खासतौर पे जो वाई क्रोमोसोम्स है, जो सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स जो होती हैं। लेकिन जो मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं उनमें बाकी पूरी जो CRL बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो मैटरनल क्रोमोसोम्स पे बनता है। तो इस वजह से अगर मैटरनल क्रोमोसोम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें बच्चे वाला पोर्शन कुछ नहीं होगा, बस प्लेसेंटा की, और वो प्लेसेंटा भी जो है वो उसमें हाइड्रोपिक डीजेनरेशन वाली चीजें होना शुरू हो जाती। ठीक है, तो ये कैरियोटाइपिंग के साथ भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अगली दफा के लिए कोई टॉपिक बता मैडम दें, वरना फिर मैं खुद ही चूज कर लूं। हाँ मैडम जी, मैडम जैसे मैडम कहते हैं एडवांस ओरियन सीए जो स्टेज 3 वगैरह एग्जाम में मैडम इसका सिनेरियो आया था, किस तो वो चीज का? एग्जामिनर एडवांस ओरियन सीए स्टेज 3 एडवांस्ड ओवेरियन सीए, अच्छा स्टेज 3 और ठीक मैडम है। एग्जामिनर किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, पता नहीं इसकी क्या की थी वो, बिल्कुल इसको क्लिनिकली स्टेज करें क्या करेंगे, अच्छा, आप जितना बता रहे थे वो नहीं हो रही थी सेटिस्फाइड। नहीं तो कोई वजह होगी ना जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है उनकी। मैडम जितना बताएंगे क्वेश्चन हम क्या उसको था? मैनेज करेंगे, क्वेश्चन क्या ट्यूमर था? बोर्ड रखेंगे। अच्छा मैडम उसके खातून हैं, एज फर्टिलिटी कंसर्न्स नहीं थे, एडवांस हाँ, ओवेरियन स्टेज 3 था और पेशेंट ट्रीट हो गई है, उसके बाद आप आ रही है, आप क्या करोगे? आप बताते थे नहीं हम पेशेंट को सपोर्टिव। आपने ट्रीट कर लिया है,
हाँ, उसके बाद आ रही है, हमने कम फॉलोअप्स पे बुलाएंगे। अच्छा, हाँ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको असाइटिस आ रहा है, चेस्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने कहा उसको रिलीव करेंगे सपोर्टिवली। हाँ प्लूरल एफ्यूजन्स आ नहीं, रही तो है तो उसकी उसको ट्रीट रिकरेंस को करेंगे। आपने रिकरेंस को भी तो देखना है, स्टेज 3 है। हाँ, फॉलोअप्स पे बुलाते रहेंगे, लेकिन मैडम समझ ये स्टेशन नहीं देखो, एग्जाम में स्टेज 3 में तो फिर रिकरेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है ना, फिर आप उसको दोबारा नए सिरे से इवेलुएट करते हो। लेकिन अब ओवेरियन सीए में भी मॉलिक्यूलर टाइपिंग वाली चीज आ चुकी है, जो अच्छा, तो वो हमने ये पिछली सुनना दफा भी चाहती थी। डिस्कस की थी। और ये हो सकता है वो इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रही हैं। ओके मैडम, यही हो सकता है। ठीक है, तो ठीक। इसको फिर हम किसी टाइम पे जब हम ओवेरियन सीएस को कंसीडर करें, मतलब वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके साथ ये हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अब जो लेटेस्ट इसमें ट्रेंड है वो है मॉलिक्यूलर टाइपिंग का, जैसा हमने पिछली दफा एंडोमेट्रियल सीए में हमने किया था, जो उसकी फ्रेश जो स्टेज है, नई वाली न्यू मॉलिक्यूलर स्टेजिंग, तो उसके उसके हिसाब से जो है वो फिर चीजें फर्क हो जाती हैं। यस मैम, यकीनन। ठीक थैंक है, यू। फिर यही होगा जो वो मुतमईन नहीं मैडम जो होगा। जाहिर है फिर मैडम आपने जो उसकी। रिकरेंट मोलार होती है, हाँ जी, रिकरेंट मोलार होती है, कोई हाँ जी, पेशेंट जैसे 11 मोलार, एक तो पेशेंट हमने वार्ड में देखी हाँ। थे, तो तो जैसे बेटा हमने पढ़ा 11 है कि मोलर जो पार्टनर हैं चेंज। उसमें तो 11 मोलर जो हैं उसमें तो आप सीधा सीधा साइटोजेनेटिक एनालिसिस करवाएं, उसका मोलर टिश्यू का भी और पेरेंट्स का भी, यानी मदर, फादर एंड अबॉर्टस, इन तीनों का कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखो पे मैं। जीन म्यूटेशंस हो जाती हैं। अब जीन म्यूटेशन अच्छा। 2 किस्म की जीन्स होती हैं इसमें, जिसमें म्यूटेशंस होती हैं। और हम्म। जिन पेरेंट्स में ये मौजूद हैं, या बल्कि उसमें अबॉर्टस में भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वजारे उसमें भी आएगा, तो उनमें हमेशा मोलर ही, उसमें हमेशा मोलर ही होता है। मैडम तो फिर ये पेशेंट साइटोजेनेटिक को। एनालिसिस आपने करवाना है फिर इसके बाद। और अगर उस पर अच्छा ठीक पॉजिटिव है आ मैम। जाता है तो इसका मतलब है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अ नॉर्मल चाइल्ड। उस सूरत में ज्यादा से ज्यादा जो चीज हेल्प कर सकती है वो कर सकती है आईवीएफ इक्सी, वो भी प्री जेनेटिक डायग्नोसिस के बाद, अच्छा मैडम, और हम इसका कोई उसको हल ये। नहीं है। ठीक है मैम, हम उसको ये एग्जाम में, मतलब अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो हम तो इसको फिर आप ये यही बताएं, केस। फिर आप यही बताएं। अच्छा ठीक है, मैम, उसमें सिर्फ पार्टनर एक चेंज के एक लिए। जीन का मुझे नाम याद है, एन N आर one एल N पी। one हाँ, NLRP7 NRLP और ये है, वो है। KHD6। लेकिन जो वही बात है ना कि इसमें हमारे पास वही हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि हम अब इसको कैसे करवाएं। अब ये जो जीन म्यूटेशंस हैं, जीन म्यूटेशंस जी के जी टेस्ट मैम। हमारे यहाँ नहीं होते। और ये मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस वाले टेस्ट हैं ये हमेशा बाहर भेजे जाते हैं, और दीज आर जी। नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, लाखों इस पे लगते हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें, इसलिए इसमें जेनेटिक टेस्टिंग हो सके तो वही इसका एक एविडेंस बेस्ड तरीका है। वरना फिर इसमें आईवीएफ इक्सी आफ्टर पीजीडी, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस जो है ना, वो फिर इसमें आप करके तो फिर इसको प्रोसीड करें। अच्छा ठीक मैडम, है, इसको हम पार्टनर चेंज का नहीं कह सकते? जैसे एग्जाम में अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो पार्टनर चेंज जो कर हमने कहीं पढ़ा है। सकते हैं, चाइल्ड एडॉप्शन कह सकते हैं, वो ऑप्शंस तो हैं हमारे पास। अब हर कोई जी मैम। जेनेटिक एनालिसिस नहीं करा सकता, हर कोई आईवीएफ इक्सी नहीं करा सकता, तो जी जी जाहिर है मैम। उसमें फिर हमारे पास यही ऑप्शन रह जाती है ना, जो ग्रास रूट अच्छा लेवल पे, बिल्कुल जो लो इकोनॉमिक स्टेटस पे, फिर ये चीजें होंगी। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। चलें जी। तो